Today we are starting with page number 119 and the topic is methodology of Human Genome Project. This I have also explained to you on yesterday's lecture that in Human Genome Project the scientists they have used two methods. First method is known as expressed sequence tags and the second method is known as sequence annotation. ओके बेटा, तो मैंने आपको ये बताया था कि व्हाट इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग. ठीक है, तो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग जो मेथड था उसमें द साइंटिस्ट डिसाइडेड दे डिसाइड दैट कि वी शुड टेक दैट पार्ट ऑफ द डीएनए व्हिच इज एक्चुअली एक्सप्रेस्ड और ट्रांसक्राइब्ड एज मैसेंजर आरएनए. ठीक है, तो एज यू नो दैट व्हेन द प्रोसेसिंग ऑफ द मैसेंजर आरएनए हैज बीन डन, then what we see that we join the exons only and the introns are removed, because you know that introns are the non-coding sequences and exons are the coding sequences. तो express sequence tag जो मेथड था उसमें साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि हम पूरा का पूरा डीएनए नहीं लेंगे, इंस्टेड ऑफ दैट डीएनए हम वो मैसेंजर आरएनए ले लेंगे जो अभी अभी डीएनए से तैयार हुआ है. ठीक है बेटे, तो उसमें उसने क्या किया, एंट्रॉन्स जो थे उसकी इस मैसेंजर आरएनए में प्रोसेसिंग हो चुकी थी, एंट्रॉन्स को रिमूव किया जा चुका था एंड उसमें सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस या एक्सॉन्स प्रेजेंट थे. तो दे सेड कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग द होल डीएनए वी शुड कंसीडर दिस मैसेंजर आरएनए whose processing has already been done and because it contains the coding sequences and exons only. Okay, what is the another thing in sequence annotation? In sequence annotation, the scientists they decided that instead of taking the messenger RNA, which only contains the coding sequences, we should take the source DNA from which this messenger RNA is produced. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि messenger RNA में तो सिर्फ और सिर्फ coding sequences ही हैं, तो हमें जो है messenger RNA की जगह पे पूरा का पूरा DNA लेना चाहिए, क्योंकि DNA जो है उसके अंदर coding sequences भी हैं और non coding sequences भी हैं. तो हो सकता है कि द कोडिंग सीक्वेंसेस दैट वी नो कि कोडिंग सीक्वेंसेस must have to code for a polypeptide or a protein, but these non-coding sequences which we called as introns, is they also playing certain important function in our body. तो इस चीज को जानने के लिए they have decided कि we should not take messenger RNA, instead of that we should take source DNA in which both coding and non-coding sequences are there. ओके बेटे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आइसोलेट द डीएनए. सबसे पहले उन्होंने डीएनए को आइसोलेट कर लिया. तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू दैट फॉर आइसोलेशन ऑफ डीएनए दे यूज डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स, such as if the cell wall of a particular cell is made up of chitin, they have used the enzyme chitinase, and if the cell wall it is made up of cellulose, then they have used the enzyme cellulases. So both of these chitinases and cellulases enzyme they destroy the cell wall and in this way the DNA it comes out. ठीक है, तो जब डीएनए को उन्होंने आइसोलेट कर लिया, they find that this DNA is a huge DNA segment and it is not possible for them to study the long polymer like DNA at the same time. So they have here used a special type of enzymes which are known as restriction endonucleases. And with the help of these restriction endonucleases, they cut the DNA into various fragments. You also know that how these restriction endonucleases they work. So these restriction endonucleases they identify the special type of sequences that are present on the DNA, which are known as palindromic sequences. So these palindromic sequences may consist of 4 bases or 6 bases. And on the base of that, they cut the DNA segments into different fragments. So in this way, they obtain so many fragments of DNA. But now the problem is कि all of these fragments they may join with each other. ये सारी fragment एक दूसरे से फिर से join हो सकती थी. तो उसको separate करने के लिए they have used one another technique, and that technique is known as Agarose gel electrophoresis. Okay, but here they use a container which is known as agarose bed and on which they spread the agarose gel. So after some time the agarose gel undergoes solidification and gel-like appearance is present over that agarose bed. On the left side of that particular
agarose bed. They connect the left side as well as the right side with the left and right terminals of the bed. ओके बेटा, जो लेफ्ट साइड थी वहां पे उन्होंने छोटे छोटे पोर्ट्स थे जिनको उन्होंने बेल्स बोला, और उसके अंदर उन्होंने डीएनए जो है उसको कोर कर लिया एंड अलाउ दिस डीएनए फ्रैगमेंट्स टू मूव ओवर द एग्रोस बैंड। तो जैसे जैसे डीएनए फ्रैगमेंट्स जो हैं इनकी जो टर्मिनल्स थे उनको बैटरीज के साथ कनेक्ट कर दिया गया, तो इलेक्ट्रिसिटी इनको सप्लाई हुई एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी इट कॉजेस द मूवमेंट ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स एंड दिस डीएनए फ्रैगमेंट्स, ठीक है, जैसे ये डीएनए फ्रैगमेंट्स जो है ये मूव की, तो उन्होंने देखा कि जो डीएनए फ्रैगमेंट्स लाइट डेंसिटी वाली थी, they reaches the positive terminal first and followed by those fragments which are bulky in nature and larger in density. ओके, तो इस तरह से उन्होंने डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर लिया। अब अलग-अलग डीएनए फ्रैगमेंट्स जो है उनको सेपरेट करने के बाद they want to make the clones of these DNA fragments. So for this purpose they insert these DNA fragments into the host organisms, और यहाँ पे उसने होस्ट ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया एंड फंजाई यूज किए, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स एंड फंजाई आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। तो देखो किसी भी होस्ट सेल के अंदर जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो इट्स डीएनए ओपन एंड इट ओपन्स एज अ साइट व्हिच इज नोन एज origin of replication. So here what they did, they insert their own DNA which is their DNA of interest with the origin of replication, और जैसे इन्होंने origin of replication के साथ उसे बाइंड किया तो वो डीएनए जो है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के जीनोम का पार्ट बन गया एंड व्हेन द होस्ट सेल फॉर्म द डॉटर सेल्स, सो दिस डीएनए आल्सो गोज इनटू द होस्ट सेल. In this way they obtain the replicas of cell which contain their DNA of interest. And later on to increase the gene cloning process and obtain millions of copies, they use another technique which is known as PCR, polymerase chain reaction. और इसमें इन्होंने क्या किया, जो भी इनके क्लोन्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स थी उनका एम्प्लीफिकेशन करवा लिया और मिलियंस ऑफ कॉपीज तैयार कर ली उस डीएनए फ्रैगमेंट्स की। एम्प्लीफिकेशन के बाद इट इज वेरी इजी फॉर द साइंटिस्ट टू डू द सीक्वेंसिंग ऑफ जीन्स ओवर दिस डीएनए। Okay, बेटे, तो here they have used one very special method and that was devised by the scientist Sanger. So this method is known as Sanger's method. ठीक है, तो Sanger method में उन्होंने क्या किया, उनके पास कुछ ऑटोमेटेड सीक्वेंसर्स थे पहले से ही और वो रेफरेंस की फॉर्म में उनको यूज कर रहे थे, उसमें जीन्स की लोकेशन पहले से ही नोन थी। तो जो इनके पास डीएनए फ्रैगमेंट्स आए उनको उन्होंने क्या किया, उन डीएनए फ्रैगमेंट्स में प्रेजेंट जो ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस थे उनके बेसिस पर उन्होंने ऑटोमेटेड सीक्वेंसर्स के ऊपर उन डीएनए फ्रैगमेंट्स को अलाइन कर दिया। तो इसके बेसिस पे उन्हें क्या पता लगी, जीन्स की लोकेशन पता लगी। जब उन्हें जीन्स की लोकेशन और उसके स्ट्रक्चर का पता लग गया तो उसके बाद दे वांट टू फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ दैट जीन, और उस जीन का फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने दे हैव रिमूव्ड दैट जीन्स and let us see what kind of symptoms appear in the body, what kind of disease appear. On the basis of that कि कौन सी disease appear हुई है, ठीक है, उन्हें पता लग गया कि this gene is actually performing this important function in our body and if it gets deleted or it may be transverse from one place to another, so and so diseases or disorder may be there on the body. So in this way they find out the location, function as well as the structure of the genes. And in this way one complete gene is sequenced or annotated and later all the genes which are present in different chromosomes they are sequenced in the similar way. तो देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है जिसमें उन्होंने कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस को यूज किया अलाइनमेंट जो है उसको चेक करने के लिए और उसी तरह से उन्होंने उसको ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स पर अलाइन किया। तो क्रोमोसोम 1 जो है इट्स सीक्वेंसिंग इज कंप्लीटेड इन May 2006 and another chromosomes XL1. देखो ह्यूमन के अंदर हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स हैं, आउट ऑफ दिस 22 ऑटोसोम्स हैं एंड 1 पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का है। तो सबसे पहले जो है 2006 के अंदर क्रोमोसोम 1 जो है इसके सीक्वेंसिंग कंप्लीट होगी और उसके बाद बाकी सारे क्रोमोसोम्स की सीक्वेंसिंग जो है वो कंप्लीट। In this way they have done the sequencing of the genes. तो उसके बाद देखो on the basis of the information whatever they draw from the human genome project, ठीक है, they also collect the information related with polymorphism of restriction
एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है बेटे, इसमें उसने ये बताया कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स है which are actually involved in the breakdown of the DNA fragments by recognizing special sequences known as palindromic sequences। तो उसके बेसिस पे उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिली उसके बेसिस पे उन्होंने ये पता लगा लिया कि वे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है उसके अंदर भी पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो देखा जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वेरिएशंस, ठीक है, एट जेनेटिक लेवल। तो हाई डिग्री ऑफ वेरिएशंस उनमें देखी गई जेनेटिक लेवल पे, तो ये चीज उन्हें पता लगी। एंड सेकंड जो उनको पता लगा कि देयर में बी सर्टेन रीजंस प्रेजेंट इन द डीएनए वेयर द बेस पेयर्स दे रिपीटेड देमसेल्व्स अगेन एंड अगेन इन अ रेपिटेटिव मैनर। उन्होंने कहा कि डीएनए के अंदर कुछ ऐसी जगह भी मौजूद हैं जहां पे जो बेस पेयर्स अरेंज्ड है वो अपने आप को बार-बार रिपीट करते हैं, ठीक है, और एक पर्टिकुलर रिदम में रिपीट करते हैं। अगर 6 बेस पेयर हैं तो 1 से लेके 6 तक जो बेस पेयर आता है उसके बाद फिर से अगेन 1 से लेके 6 तक वही बेस पेयर आते हैं, और ऐसा जो है वो 3 बार, 4 बार, 5 बार या फिर 10 बार भी कर सकते हैं। तो such places where such kind of repetitive base pairs are present, they are known as repetitive DNA। उसने कहा कि डीएनए जो है उसके बहुत सारे पार्ट में रेपिटेटिव डीएनए जो हैं वो प्रेजेंट है। और इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन उन्होंने पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ एंडो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बेसिस पे ऑब्टेन की थी, उसके बेसिस पे उन्होंने फिजिकल मैप्स तैयार कर लिए जीनोम के ऊपर, एंड लेटर ऑन दे हैव स्टोर दिस इंफॉर्मेशन। इस तरह से दिस इंफॉर्मेशन इज लेटर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है बेटे, आपको सेलेंट फीचर्स दिए हुए हैं, देखो पेज नंबर 120 पे सेलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो उसमें उसने आपको बताया कि ह्यूमन जीनोम जो है उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट देखिए 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस, ठीक है, इतने बेसेस जो है ह्यूमन जीनोम के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट में मैंने बताया गया है कि एवरेज जीन जो है उसमें कितने बेसेस हो सकते हैं, लगभग 3000 बेसेस शुड बी देयर, but the size of the genes they may vary. There may be some genes which are smaller in size or there may be some genes which are bigger in size. तो उसमें उसने बताया कि there is one human gene and its name is dystrophin। तो dystrophin जो जीन था उसके अंदर 2.4 मिलियन बेसेस जो है वो प्रेजेंट थे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसकी एस्टिमेट जो है उन्होंने लगाया था 80,000 और to 1 lakh genes present होने का। They have estimated that in our body 80,000 to 1 lakh genes should be present, but later on they find that from this project not only such a huge number of genes present in your body, only 30,000 genes are there in your body, ठीक है। One very important thing that they concluded from the human genome project is कि almost 99.9 base pairs are same in all the human beings। सभी human beings के अंदर 99.9% बेस पेयर्स जो है वो सेम है, और 1% बेस पेयर जो है वो ऐसे हैं जो कि डिफरेंस रखता है, और उसी की वजह से हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके यूनिक कैरेक्टर्स है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन्स। नॉट ऑल द जीन्स दे कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड्स, सिर्फ 2% से भी कम जीन्स हैं वो जो बॉडी के अंदर क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं जो जीनोम में इंटरेस्ट रखते हैं। ओके बेटे, उसके बाद देखो repetitive sequences are stretches of DNA sequences that are repeated many times. So what is said कि there are special place present in the DNA, and that place of the DNA it actually contains the repetitive DNAs, and this repetitive DNA actually consists of such bases where the bases they repeat themselves in a characteristic manner. Okay. Another important thing is कि what they said, repetitive sequences are stretches of DNA sequences that are repeated many times, and they may be present in 100 to 1000 times. So in repetitive sequences, sometimes 100 to 1000 times भी repeat होते हैं bases, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसका कोडिंग के अंदर तो कोई रोल नहीं है इन repetitive DNA sequences का, पर इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं उसके ऊपर ये लाइट डालते हैं, एंड दैट इज क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। इससे हमें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का पता लगता है, एंड डायनामिक्स का पता लगता है, एंड फंक्शंस का पता लगता है।
All of these important things are related with human genome. उसके बाद देखो 8th पॉइंट में लिखा है क्रोमोसोम 1 has most genes and Y has fewer genes. तो क्रोमोसोम 1 जो है उसके अंदर 2968 जीन्स प्रेजेंट थे एंड जो Y था क्रोमोसोम जो कि मेल का क्रोमोसोम होता है उसके अंदर सिर्फ कितने जीन्स प्रेजेंट थे? ओनली 23 जीन्स आर प्रेजेंट. फिर लास्ट पॉइंट में लिखे हैं साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर सिंगल बेस डीएनए सीक्वेंसेस आर देयर. ठीक है, इसके अलावा साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने कुछ ऐसे जो है क्रोमोसोम्स को भी फाइंड आउट किया, जैसे क्रोमोसोम जिसके अंदर वो कहते हैं कि 1.4 मिलियन लोकेशंस जो हैं ऐसी थी जिसमें कि ऐसे डीएनए बेसिस प्रेजेंट थे जिनके एक बेस में डिफरेंस था. तो इसको उन्होंने सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का नेम दिया व्हिच इज पॉपुलरली नोन एज SNP. तो SNPs का नेम उन्होंने इसको दिया सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. दिस इंफॉर्मेशन promises to revolutionize the process of finding chromosomal location for disease associated sequence and tracing human history. तो ये जो सीक्वेंसेस थे जिसको इन्होंने सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का नेम दिया SNP बोला, उन्होंने कहा कि इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये हमें बॉडी में होने वाले जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में बताते हैं. और सेकेंडली ह्यूमन हिस्ट्री के दौरान अगर हमें एवोल्यूशन के बारे में जाना है, ठीक है, हाउ द पर्टिकुलर स्पीशीज ओरिजिनेट फ्रॉम द प्रीवियस वन, उसके बारे में भी हमें जानकारी जो है इससे. अब एप्लीकेशन एंड फ्यूचर के अंदर आपको ये बताया हुआ है. यस बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मैथ्यू? मैम एक बार 9th पॉइंट फिर से समझा दो. 9th पॉइंट में बेटा ये बताया उसने कि डीएनए को जब उन्होंने स्टडी किया तो उसमें 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी थी जहां पे उसको ऐसे नाइट्रोजेनियस बेसिस के ग्रुप मिले. तो देखो एक कोडॉन के अंदर कितने नाइट्रोजेनियस बेसिस होते हैं? 3 होते हैं ना. तो उसमें से उसने कहा कि ये जो नाइट्रोजेनियस बेसिस के ग्रुप थे यानी कोडॉन्स थे, इसमें एक बेस जो है उसके बेसिस पे वेरिएशन थी. मतलब हर एक जो था उससे दूसरा वाला कोडॉन कैसे डिफर करता था? सिंगल बेस के बेसिस पे डिफर करता था. जैसे किसी में अगर एडेनाइन प्रेजेंट है ट्रिपलेट ऑफ बेसिस में, तो दूसरा वाला जो है उसमें एडेनाइन की जगह पे कोई और बेस था, बाकी 2 बेस जो है वो सेम थे. इस तरह की ऐसी कई लोकेशंस उनको मिली जिनमें सिंगल बेस जो है उसमें डिफरेंसेस थे. जैसे किसी फर्स्ट वाले जो ट्रिपलेट कोडॉन है उसके अंदर एडेनाइन है, दूसरे वाले में एडेनाइन की जगह पे कोई और बेस है, थर्ड वाले में भी पीछे के 2 बेसिस सेम है और आगे वाला जो बेस है वो डिफरेंट है. तो इसके बेसिस पे उन्होंने ये पता लगाया कि जो डिफरेंसेस आते हैं बेस पेयर्स में, ठीक है, वो म्यूटेशंस की वजह से हो सकते हैं. और म्यूटेशंस जो है वो बॉडी के अंदर क्या क्रिएट करती हैं? डिजीजेस या डिसऑर्डर्स क्रिएट करती हैं. और इसके अलावा वो कहते हैं कि ये जो सिंगल बेस डिफरेंसेस है ना, वो हमें ये भी बताते हैं कि पर्टिकुलर स्पीशीज जो है उसका ऑरिजिन कौन से ऑर्गेनिज्म से हुआ है. इससे हमें किसी भी ह्यूमन की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में भी पता लगता है. ओके बेटा, दिस इज क्लियर नाउ? यस मैम. ओके, अब हम पेज नंबर 120 पे हैं, एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर चैलेंजेस जहां पे लिखा है उसमें देखिए उसने ये बताया कि दिस इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट. So all the scientists from the public and the private sectors, they work hard for this project for many years. And one of the impact, ठीक है, सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का बायोलॉजिकल वर्ल्ड के ऊपर बड़ा वो ये था कि अब तक जितने भी साइंटिस्ट थे, they have studied only one or few genes at a time, and they just know the disorders or diseases that are related with those one or two genes only. But now the scientists, they become successful in finding out the location, structure and function of all the genes. तो अब वो कहता है कि जब पूरे ही जीन्स को जीनोम के अंदर स्टडी कर लिया तो उसके बेसिस पे अब साइंटिस्ट जो है वो किसी भी तरह का कोई डिसऑर्डर है या म्यूटेशन है उसको फाइंड आउट कर सकते थे और उसके लिए सुटेबल रेमेडीज दे सकते थे. ठीक है, इसके अलावा कहते हैं कि कुछ खास तरह के जो सेल्स हैं या ऑर्गन्स हैं या फिर कुछ ट्यूमर वाले सेल्स हैं उनके बारे में पता लगाया जा सकता था. और इससे हमें ये भी पता लगा कि हाउ द डिफरेंट number of genes they work together and they are involved in the successful working or successful functioning of your body. Okay, so this completes our first topic
फ्रॉम लास्ट दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो देखो 3 क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। फर्स्ट इज व्हाई द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज नोन एज अ मेगा प्रोजेक्ट। सेकंड वन इज गिव द you can say goals of the human genome project, and third question आ जाएगा describe the methodology of the human genome project, and fourth question आ जाएगा what are the salient features of human genome project। ये 4 क्वेश्चन हमने तैयार कर लेने हैं। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे हैं, दैट इज नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है बेटे, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है इट इज अ मेथड बाय व्हिच वी कंपेयर द डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, वैसे तो वो ये कहते हैं कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, तो हमें पता है कि 6 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स ह्यूमन जीनोम के अंदर डिप्लॉयड कंटेंट में प्रेजेंट है। और अगर हम एम्प्लॉयड कंटेंट की बात कर रहे हैं तो 3 × 10⁹ बेस पेयर्स जो है वो ह्यूमन जीनोम के एप्लॉयड कंटेंट में प्रेजेंट है। एंड वी हैव आल्सो स्टडीड फ्रॉम डीएनए सीक्वेंसिंग कि आउट ऑफ दीस 99.9% बेसेस आर सिमिलर in all the human beings, and rest of the 1% base only, they are actually those base pairs which are unique to every individual. And we know that in a particular individual genetic information is actually controlled by these base pairs। इसका मतलब 99.9% बेसिस सभी इंडिविजुअल के अंदर एक जैसे हैं, 1% जो है वो डिफर करते हैं, और यही क्या प्रोड्यूस करते हैं, वेरिएशंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और यही वेरिएशंस जो हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करती है, डिफरेंट बनाती है। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम 2 अलग-अलग इंडिविजुअल्स जो हैं उनके डीएनए सीक्वेंसेस जो हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे हमें ये कंक्लूजन मिलती है कि भाई 99.9% बेसिस जो है वो सभी ह्यूमन बीइंग्स में एक जैसे हैं, और सिर्फ 0.1% बेस ऐसे हैं जो कि इंडिविजुअल जो है उसको यूनिक बनाते हैं, यानी डिफरेंट बेसेस हैं, और यही जो है वो वेरिएशंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क टू सीक्वेंस एंड कंपेयर ऑल द बेसेस इन टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, अगर फिर से हम वो कहते हैं कि सीक्वेंसिंग को देखें या फिर 3 × 10⁹ बेस पेयर्स जो हैं जो एक इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट है उनको कंपेयर करने लगे 2 इंडिविजुअल्स के साथ, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हियर व्हाट द साइंटिस्ट obtained information from the human genome project। ठीक है, साइंटिस्ट को इंफॉर्मेशन जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से मिली थी उसके बेसिस पे उन्होंने ये डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग द होल डीएनए, ठीक है, पूरा डीएनए कंसीडर करने की जगह पे हमें क्या करना चाहिए, डीएनए जो है उसका हमने क्या करना है, यहाँ पर वो पार्ट कंसीडर कर लेना है जिसके अंदर मैक्सिमम वेरिएशंस प्रेजेंट है। ठीक है बेटे, तो इसको उन्होंने क्या कहा, रेपिटेटिव डीएनए का नाम दिया। तो देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रिंसिपल है वो डिफरेंसेस क्या पाए जाते हैं स्पेसिफिक रीजन में डीएनए की, ठीक है, जिसे हम रेपिटेटिव डीएनए बोलते हैं, उसके बेसिस पर। तो व्हाट आर रेपिटेटिव डीएनए, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि रेपिटेटिव डीएनए आर द पार्ट ऑफ द मेन डीएनए वेयर सम ऑफ द बेसिस दे रिपीट देमसेल्व्स इन अ कैरेक्टरिस्टिक मैनर। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी डीएनए स्ट्रैंड को स्टडी कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमारे पास, ठीक है, काफी सारे नाइट्रोजेनियस बेसिस प्रेजेंट है। तो आउट ऑफ दीस नाइट्रोजेनियस बेसिस अगर हम देखें कि भाई ये नाइट्रोजेनियस बेसिस कैसे अरेंज, उसमें वो कहते हैं कि नाइट्रोजेनियस बेसिस जो है उसमें कुछ ऐसे बेस हो सकते हैं जो 2 के ग्रुप में एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं, जैसे ऐसे है, इसे डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर एजी 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 एजी, ठीक है, या फिर कुछ और हमारा क्रोमोसोम जो है उसके अंदर बेसिस जो है वो एक दूसरे को कैसे रिपीट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास बेस है AAG, फिर अगेन AAG AAG AAG, ऐसे आता जाएगा, यानी 3 के ग्रुप बन जाएंगे। अगर 4 है तो उसमें 4 की यूनिट्स में बेसिस रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, AGCA, इस तरह से 4 बेसिस यही वाले द्वारा आएंगे, AGCA AGCA। इस सेगमेंट को डीएनए की उन्होंने क्या नेम दिया, रेपिटेटिव डीएनए का नेम दिया, और उसके बेसिस पे उन्होंने ये बताया कि अगर कोई 2 इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक दूसरे से कुछ वेरिएशंस या डिफरेंसेस रखते हैं, तो दिस डिफरेंसेस आर एक्चुअली because of the presence of some characteristic bases that are present in the repetitive DNA। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा डीएनए ले लिया और उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर डाल दिया ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी।
ठीक है। सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है उसने डीएनए जो है स्मॉलर डेंसिटी वाला जो है उसको नीचे ही छोड़ दिया एंड अपर डेंसिटी वाला जो था वो ऊपर आ गया। ठीक है, तो उसके बेसिस पे अपर डेंसिटी वाला नीचे चला गया एंड लोअर डेंसिटी वाला ऊपर आ गया एंड इन दिस वे दे आइसोलेट द डीएनए ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है बेटे, अब वो कहते हैं कि दे हैव यूज्ड वन मशीन एंड दैट मशीन इज नोन एज सेंट्रीफ्यूज। उसको उन्होंने सेंट्रीफ्यूज का नाम दिया। तो यू हैव लर्नड अबाउट सेंट्रीफ्यूज। इट इज समewhat globular type of machine surrounded by a lid। तो उस ग्लोबुलर मशीन जो है ना, अगर उसको आप ओपन करके देखेंगे देन देयर आर सो मेनी सर्कल्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द रिंग लाइक स्ट्रक्चर इन द मशीन। तो हर एक जो सर्कल है उसके अंदर क्या है, एक एक उसके अंदर जो है टेस्ट ट्यूब उन्होंने खड़ी कर दी एंड इन दिस वे दे हैव डन द सेंट्रीफ्यूगेशन। उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन कर लिया और उसके बेसिस पर तो सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने दो तरह के डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट कर लिया। ठीक है, कुछ डीएनए जो थे वो बल्क फेस में रह गए, उनको बल्क डीएनए बोला, और जो डीएनए जो थे स्मॉलर डेंसिटी रखते थे उनको उन्होंने क्या बोला, सैटेलाइट डीएनए बोला। फिर शाम को दे हैव डन अनदर थिंग। ठीक है, तो सैटेलाइट डीएनए जो है उसको भी उन्होंने फर्दर डिवाइड किया। कुछ डीएनए जो थे उनको मिनी डीएनए मिनी सैटेलाइट्स के अंदर रखा और कुछ डीएनए जो है उनको माइक्रो सैटेलाइट्स जो है उनके अंदर रखा। And later on page number 121 there is one small paragraph given and उसके अंदर एक word use किया गया है that is known as polymorphism। ठीक है, polymorphism word का मतलब होता है variations at genetic level। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि these non-coding sequences which are actually known as the repetitive sequences, ये sequences जो हैं ये क्या रखते हैं, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म रखते हैं, यानी बहुत ज्यादा वेरिएशंस रखते हैं। और रेपिटेटिव डीएनए में ये वेरिएशंस ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू द बल्क डीएनए। ठीक है, तो उसका रीजन उन्होंने ये बताया कि व्हेन म्यूटेशंस occur then due to those mutations some changes occur in the vegetative cells as well as some changes also occur in the germ cells। But what is the special thing about these germ cells, if mutations occurs in these germ cells, तो ये germ cells जो हैं वो क्या करते हैं, ये जो germ cells हैं ये उन म्यूटेशंस को आगे न्यू जनरेशंस के अंदर पास कर देती हैं और इन जर्म सेल्स में ये म्यूटेशंस जो हैं वो बनी रहती हैं और इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन जो है इन जीन्स के अंदर होने वाली म्यूटेशन से जो फिनोटाइप चेंज हुआ है वो मूव करता रहता है। So this technique is used by the scientists for checking out the paternity of the children also। So sometimes the mother gave birth to the child and the father is not accepting that child as her son। In that case, ठीक है, पेरेंटल अगर डिस्प्यूटेड पेरेंटेज का केस है तो उसको भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा इफ सम क्राइम इज डन ऑन अ साइट तो दैट किसने वो क्राइम किया है उसको भी फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इस तरह से उन्होंने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताया हुआ है। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो डीएनए के नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस के अंदर ज्यादातर देखा जाता है जहाँ पे रेपिटेटिव बेसिस प्रेजेंट होते हैं और क्योंकि ये जर्म सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड स्पीशीज में आगे से आगे ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है बेटे, उसके बाद वो कहते हैं कि जब उसने डीएनए जो है अच्छे से स्टडी कर लिया तो उसके बेसिस पे जो है दे हैव अटैच्ड सर्टेन स्पेसिफिक वर्ड्स विद देम। ठीक है, एंड उसके बाद स्टेप्स दिए हुए हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है उसके अंदर आपको पता है कि सबसे पहले वी हैव टू आइसोलेट का डीएनए। हमने डीएनए जो है उसको आइसोलेट कर लेना है। देखो कोई भी डीएनए जिसको हमने किसी क्राइम सीन से कनेक्ट किया हुआ है उस केस में हम केस जो है उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो सबसे पहले रहता है कि जो भी हाउस है, ठीक है, उसके बेसिस पे हमने क्या करना है, जहां से हमें उसके सैंपल मिले हैं क्राइम के तो वहां पे वो वाला जो डीएनए आपने वहां क्राइम सीन से कलेक्ट किया है दैट डीएनए इज नोन एज अ प्रोब डीएनए। उसको हम प्रोब डीएनए कहेंगे। तो देखो वी हैव कलेक्टेड द डीएनएस ऑफ मेनी पर्सन्स फ्रॉम द क्राइम सीन बट वी आर नॉट श्योर दैट हु इज एक्चुअली डन द क्राइम। So in that situation we isolate that DNA by all the methods which we used early in case of human sequencing। उसमें सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट कर लिया। उसके बाद डीएनए जो है उसको हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम अप्लाई करके उसके डीएनए फ्रैगमेंट्स बना लिए। फिर उन डीएनए फ्रैगमेंट्स जो है
उसको उन्होंने क्या किया, सेपरेट कर लिया बाय द टेक्निक दैट इज नोन एज एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देन आफ्टर दैट दिस डीएनए फ्रैगमेंट्स आर क्लोन्ड, इनको क्लोन कर लिया और उसके बाद दिस डीएनए फ्रैगमेंट्स, ठीक है, इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को जिनके अंदर की वी एंड टी आर भी हो सकते थे, वी एंड टी आर का मतलब होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट्स, यानी स्टेप वाले रीजन थे जहां पे अगेन एंड अगेन रेपिटेटिव डीएनए प्रेजेंट होती है। तो उस डीएनए को क्या किया, फिर इन्होंने जो है नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन से बनी हुई वायर्स के ऊपर फेंका और उसके बाद जो है डीएनए को उन्होंने सेपरेट कर लिया। जैसे उन्होंने इसको नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन वायर के ऊपर फेंका तो both the strands of the DNA they get open, दोनों ही स्टैंड्स जो है डीएनए के वो ओपन हो गए। तो इस तरह से उन्होंने सिंगल स्टैंडर्ड वी एंड टी आर प्रोब्स जो है इनको तैयार कर लिया, ठीक है। तो ऐसा एक डीएनए जो उनके पास आया है और जितने लोगों पे उनको शक है उन सबके डीएनए लेके उसको इसी सारे मेथड्स में से पास किया, आइसोलेट किया, डाइजेस्ट किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस से, और उसके बाद सेपरेशन ट्रांसफरिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स को सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है। फिर एक नाइट्रोसेलुलोज प्लेट जो है ना उसके ऊपर वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है उनको स्प्रेड करके रख दिया और सिमिलर सारे स्टेप जो है दे हैव आल्सो डन फॉर द दैट प्रॉप डीएनए जिसकी इन्वेस्टिगेशन चलती है। उसके बाद उसको भी नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पे जब पहुंचे तो उसकी भी सारी फ्रैगमेंट्स जो उनको सेपरेट करके रख दिया। तो उसके बाद क्या किया, इन द टेक्निक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की जो टेक्निक थी, ठीक है, उस टेक्निक की हेल्प से उन्होंने जो प्रॉप डीएनए की फ्रैगमेंट्स थी उनको उन्होंने क्या किया, प्रॉप डीएनए की जो फ्रैगमेंट्स हैं उसको जो हमारे पास ऐसा डीएनए था जो हमने कलेक्ट किया था बट वी आर नॉट श्योर कि वो किसका है, सैंपल कलेक्टेड डीएनए जो था उसको भी उन्होंने प्रॉप डीएनए के साथ साथ जो है सिंगल स्टैंडर्ड बना लिया और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में जो प्रॉप डीएनए था उसको उसके ऊपर हाइब्रिडाइज करने के लिए छोड़ दिया। अगर प्रॉप डीएनए जो है उसमें प्रेजेंट रेपिटेटिव डीएनए के मेंबर्स पैरेंट डीएनए जो है उसके साथ प्रॉप डीएनए के जो सैंपल डीएनए है उसके साथ मैच कर जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि सो एंड सो बिलोंग टू व्हाट, मतलब ये पर्सन वही पर्सन है जिसका जो सैंपल हमने कलेक्ट किया क्राइम सीन से वो सैंपल उसी पर्सन का है। तो इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम एक्यूज्ड जो है उसका पता लगा सकते हैं और डिस्प्यूटेड पैरेंटेज के केसेस जो उनको भी हम हल कर सकते हैं। तो इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो एक एडवांटेज थी इस मेथड के अंदर। यस बेटे, इज देयर एनी प्रॉब्लम? मैम फिर से वो VNTR की फुल फॉर्म बताना। VNTR की फुल फॉर्म है बेटे वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, मतलब यहाँ पे वो बात कर रहा है रेपिटेटिव डीएनए की। तो रेपिटेटिव डीएनए जो है ना उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, VNTR प्रेजेंट है, मतलब अगर हम पहला क्रोमोसोम जो है उसमें से डीएनए ले रहे हैं, फर्स्ट क्रोमोसोम जो है उसके अंदर डीएनए ले रहे हैं तो उस डीएनए सैंपल में हो सकता है कि ऐसे रेपिटेटिव बेसिस प्रेजेंट हो जो 1 2 1 2 करके एक दूसरे को रिपीट करते हैं। अगर हमने सेकंड क्रोमोसोम्स में से लिया है उस केस में उस केस में बेस पेयर्स जो है तो इस तरह से रेपिटेटिव बेस पेयर हो सकते हैं कि 6 के बाद वही बेस पेयर द्वारा आते हैं, ठीक है, जैसे AUC, ठीक है, फिर कुछ इसी तरह का। तो 6 के बाद बेसिस रिपीट होते हैं, कुछ 5 वाले हो सकते हैं, कुछ 4 वाले हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि डीएनए प्रॉप के लिए भी यही काम किया और दूसरा जो डीएनए है उसके लिए भी यही किया और उसके बाद ओवरलैपिंग सेगमेंट्स को मैच कर लिया और उसके बेसिस पे वी आर एबल टू फाइंड आउट कौन सा डीएनए जो है वो रिस्पांसिबल है डिजीज के लिए। यस बेटे, एनी प्रॉब्लम? नो मैम। बेटे मैं तो इसी के साथ एक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पेज नंबर 123 पे देखो फिगर नंबर फिगर नंबर 6.16, ठीक है। तो उसके अंदर देखो आपको बताया हुआ है कि पेरेंटल अगर पेरेंट एज का डिस्प्यूटेड केस है तो उसको कैसे सॉल्व आउट करना है, ठीक है बेटे। तो उसके अंदर उसने देखो आपको बताया हुआ है कि दोनों पेरेंट्स में से उन्होंने जो चाइल्ड होते हैं उसके अंदर दोनों पेरेंट्स में से करेक्टर्स आते हैं। तो देखो उसमें क्रोमोसोम्स बताए हुए हैं दोनों पेरेंट्स के, ठीक है।
और नीचे जो है उसने आपको बताया हुआ है कि डीएनए जो है अलग अलग इंडिविजुअल्स जो है उनके अंदर जो डीएनए उन इंडिविजुअल ने रिसीव किया उनके अंदर उनके पेरेंट्स के कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो हमने क्राइम सीन जो है उसमें से कोई डीएनए सिलेक्ट किया यहाँ पर और उस डीएनए के बैंड्स हमारे पास इस तरह से आ गए। जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बेसिस रिपीट हो रही हैं। ठीक है, और उसके बाद क्रोमोसोम नंबर 2 के अंदर कितने बेसिस रिपीट हो रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर 16 में कितने बेसिस रिपीट हो रहे हैं, उसके बेसिस पे लास्ट में वो क्या करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक से इन बैंड्स को हाईलाइट कर देते हैं। और फिर जो हमने दो जिनके ऊपर हमें शक है, एक्यूज्ड है, उनके डीएनए के भी इसी तरह से बैंड्स ऑब्टेन कर लेंगे और जो हमारा प्रॉप डीएनए जिसकी इन्वेस्टिगेशन चलती है उसको इनके साथ कंपेयर करेंगे। अगर आप ध्यान से देख रहे हो सी वाला बी वाले के साथ मैच कर रहा है, इसका मतलब बी वाला पर्सन जो है उसी ने क्राइम जो है वो किया है। इस तरह से हमें पता लग जाएगा कि जो हमें क्राइम सीन पे डीएनए मिला है वो एक्चुअली बी वाले पर्सन है। ठीक है, क्लियर है बेटे मैथ्यू? यस मैम। हाँ जी, और एग्जांपल मैं कल बताऊंगी आपको। ठीक है, आपने आज यहाँ तक पढ़ लेना है एंड साइंटिस्ट का नेम याद रखना है, नेम ऑफ द साइंटिस्ट।